But when you are in this field, you always have to work with energy, and energy is always in the morning. So, good morning again, everyone. Can you do this uh, full screen? Okay, great. So, I think now you can all now on PPT. Today, our topic is customer service, customer relationship. This is my little bit introduction, and I will say next. When I say next, then who is operating the PPT? Just go for the next. Okay, fine. So is this okay if we Yeah, start with this? Okay, fine. Yeah. yeah. This is my small introduction for all of you, and this is really my. I love this topic. So let's go next. ये जो टॉपिक है, अगर इस टॉपिक की हम बात करते हैं, I just want to ask you, all of you, one thing. If I can I learn to you how to swim? If it is no, then write no. And if it yes, please don't go for next. I will tell you for next. You all, you all ready for the chat box also. I can understand you only from by chat box. Darshan sir, True. have you given the timer to the PPT? Yes. Given. So that is the reason it gets loaded. No This. problem. No, No no. problem. Yeah. So आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग. अगर मैं आपको ये पूछता हूं, अगर मैं आपको ये सिखा देता हूं, वर्ल्ड का नंबर वन ट्रेनर आपको सिखाता है कि कैसे स्विम करना है, तो क्या आप स्विम करना सीख लोगे? इफ इट इज नो देन राइट एन, इफ इट इज यस देन राइट यस. वाई? प्रतीक्षा, विधि. ओह दैट्स ग्रेट. नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको अगर कोई आके ये सिखा दे. तो मैं आपको 100% इतना बता देना चाहता हूँ, ये टॉपिक ऐसा है कि कितना भी आप सीख लो इस टॉपिक को, जब तक आप ये टॉपिक पे काम नहीं करोगे. थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन हु आर आंसरिंग राइट नाउ. जब तक आप ये टॉपिक पे काम नहीं करोगे, तब तक आपको ये नहीं आएगा कि कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है. बट ऑल्दो राइट नाउ वी आर हियर, so I just want to tell you about my experience, all about my experience, and let's go for it. Kinjal Tripathi, change the uh, settings. So I just want to ask you, all of you, what is the meaning? What is the customer? Can you write in the chat box what is the customer? It must be in a word. What is customer? That's great. King, Bhagwan, king of the market. True. God in market. Very good. Sidraj, that's really great. Vitirot, king of the market. A person who pays a money and for the product. That's great, Dr. Riddhi. Dharmi said good and service user. Kapil says king of market. You all are right, but I just want to ask you that इज दिस ट्रू इन मार्केट? अगर हम देखने जाए, मेरे नजरिए से अगर आप देखो, मैंने जिंदगी जितनी जी है, मैंने जितने कस्टमर्स को हैंडल किया है, मैं जितना इस कंसेप्ट को समझ पाया हूं, क्या ये सही है क्या? वाई और एन? यस फॉर वाई, एन फॉर नो. मयंक से नो, ईशा से नो, तो मोस्ट ऑफ द पीपल से नो. हम किंग है, कस्टमर किंग है, लेकिन क्या आपको ये पता है, आप ये मान सकते हो कि आप किंग है? Can we go for I need that PPT, please. From my side, you can write the spelling of customer in the chat box. Till the PPT will come, let's do one exercise. Oh, that's great. I am happy for you. You all can write the customer spelling. अगर मैं इसको थोड़ा अलग करूं,
पीपीटी आ जाएगा क्या? हेलो रिद्धि मैम, It is there, Darshan sir. पीपीटी सबको दिख रहा है? हाँ, it is there. मुझे क्यों नहीं दिख रहा? It's visible. 1 मिनट, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हम्म, can you all see PPT? If yes, then write Y. દર્શન સર મને 1 મિનિટ આપો, આપણે પીપીટી માં ચેન્જ કરવું પડશે કારણ કે પેલું ટાઈમર છે ને એટલે ફટાફટ સ્ક્રોલ થયા કરે છે. એમ નહીં, પણ મને દેખાતી જ નથી PPT. યુ પિન ડાઉન. ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. સો તમે ક્લિયર કરી લો ત્યાં સુધી હું અહીંયા ચાલુ રાખું છું. यस, अगर आप कस्टमर को तोड़ोगे, माने इस शब्द को तोड़ोगे और उसके बाद जब जोड़ोगे तो देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन गुजराती, होप यू ऑल आर गुजराती और बिलोंग फ्रॉम हिंदी, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कष्ट मर यानी पूरी जिंदगी कष्ट में मरने वाला. कैन यू गेट व्हाट आई वांट टू से? पूरी जिंदगी कष्ट में मरने वाला. सिद्धराज गोहिल, ओके. पूरी जिंदगी कष्ट में मरने वाला माने आप कभी भी किसी भी कस्टमर के पास जाओगे तो कस्टमर कभी भी हैप्पी रहने वाला नहीं है, वो हमेशा दुखी रहेगा. आर यू कन्विंस विथ मी? यस देन वाई, नो देन एन. वेटिंग फॉर योर रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. वाई और एन? कष्ट में मरने वाला, कष्ट मर. हेलो हेलो, Yes, sir. am I audible? Hello. Yes, sir. Yeah, Darshan sir, absolutely audible. Yeah. Okay, please support me on chat because of I can only understand with you. I am not I cannot only speak. I just need your support also. So please be on chat. कष्ट में मरने वाला जो भी कस्टमर है, Sir, you are not audible, sir. દર્શન સર. આ કોઈક મારું સેટિંગ ચેન્જ કરે છે. હેલો, now am I audible? Yeah, I you open are it. audible. And Yes, now sir. Yes, sir. screen is also audible, I guess. Okay, Screen that's is great. also Thank you. visible. Yeah. Great, great. Yeah, go ahead. Yeah. That's good. Thank you. So कष्ट में मरने वाला कस्टमर. I just want to ask you one thing. If someone is come with you who is not happy, तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे? माने हर मर्ज की एक दवा है, वो क्या है? नेक्स्ट पीपीटी. या स्माइली फेस 24/7 आपको स्माइल रखना पड़ेगा आपके फेस पे. अगर आपका फेस स्माइली है तो आप ऑलवेज कोई भी कस्टमर को हैंडल कर पाएंगे, राइट? सेटिंग चेंज थયું. हेलो, You are audible, sir. You are audible. Yeah. ओके ओके ओके. आपको स्माइली फेस रखना पड़ेगा और जब तक आपका स्माइली फेस नहीं है तब तक आप कोई भी चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे. माने दिमाग और पैराशूट दो बिना खुले काम नहीं करते हैं. तो आप जब स्माइल करते हो तो आपका जो दिमाग है वो खुल जाता है और वो किसी भी टाइप के कस्टमर को हैंडल करने के लिए रेडी हो जाता है. अब जब कस्टमर सर्विस की बात आती है, कस्टमर रिलेशनशिप की बात आती है, नेक्स्ट, इफ यू आर इन एनी रेस्टोरेंट देन व्हाट इज द एग्जैक्टली एवरीवन नीड? सब लोगों की नीड क्या रहती है फास्ट फूड में के अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो? राइट ऑन चैट फास्ट. आर यू ऑल हियर? Yes, sir. Okay. So if you are not comfortable to write in chat, then just give me one message on there. We are not comfortable, so I will continue without interacting with you.
तो प्लीज सपोर्ट मी। फास्ट फूड के अंदर आप जब जाते हैं तब जो फास्ट सर्विस देता है उसी के वहां आप काम कर पाते हैं, वो उसकी सर्विस हो जाती है। देन नेक्स्ट अनदर थिंग इज क्वालिटी। कोई भी कस्टमर को क्या क्या चाहिए, एक किसी जगह पे अगर फास्ट सर्विस है तो आपके वहां आप उसके वहां पे जाओगे, अगर उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है, माने अगर हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं आरओ सर्विस, तो आरओ के अंदर शार्प कंपनी जो है वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देती है। माने उसके अंदर तरीका क्या है, उसका जो मेमोरॉन आता है वो मेमोरॉन पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 है। और आज का जो कस्टमर है दे आर लिटरेट, माने आज से 10 साल पहले कस्टमर को आप जो समझाओ वो समझ जाता था, लेकिन आज के जमाने में वो समझने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो 10 बार 10 जगह पूछने के बाद इस चीज को परचेज करेगा। तो शार्प जो है वो वर्ल्ड क्लास नंबर 1 मेमोरॉन आता है। तो अगर आपकी मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट है नेक्स्ट, तो लोग इस चीज को परचेज करने आएंगे, और क्वालिटी अगर आपके वहां पे रहेगी तो वो कस्टमर आपके वहां पे परचेज करेगा। क्वालिटी के अलावा जो थर्ड चीज है वो क्या रहेगी, माने नेक्स्ट इज मंत्रा, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ऑनलाइन सर्विसेज। सो आप में से कोई गेस कर पाएगा, चैट बॉक्स में लिख पाएगा कि ये जो सारी सर्विस है वो कस्टमर्स को क्या देती है जिसके कारण कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। व्हाट इज द वर्ड टू अट्रैक्ट द कस्टमर फॉर ऑल दिस कंपनी? आर यू ऑल हियर? 24 and 7. 24 into 7, yeah, that's great, Siddharth bhai. Next is Doorstep service. doorstep Door to door. service, yes. Next, Door to door. door to door, yes. But the all companies, please next, fast से आगे जाइए। types of goods and True. More Next, products are available on same platform. that's it, And Mayank one bhai. place we Next, can get everything. yes, Meghna bhai. Variety, True. and we can change. Next. We can interchange also whenever needed. True, Dr. Riddhi. Please next. Next. Hello. Yes. If you go on the websites, आप एक चीज सोचो, बिग बास्केट जो है आपके किराना के व्यापार के वहां पे भी आपको मिल्क मिल जाता है, और ये एप्लीकेशन पे भी मिल्क मिलता है। तो लोग एप्लीकेशन पे क्यों आएंगे, लोग वहां जाके क्यों परचेज नहीं करेंगे? डोर स्टेप तो हो गया, लेकिन आज का जो कस्टमर ढूंढता है, जो शब्द है, ये सारी वेबसाइट के पीछे आपने भी उस चीज को फील किया होगा। सारे कस्टमर जो ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं एप्लीकेशन पे जाके। नेक्स्ट, एम आई राइट? नेक्स्ट, चिप ढूंढ रहे हैं। आर यू एग्री विथ दिस? प्लीज सपोर्ट मी ऑन चैट। वाई विथ यस? हम ऑनलाइन जाके सबसे पहले ये ढूंढते हैं, हम ये सर्च करते हैं कि हमको क्या चिप मिल रहा है। तो कस्टमर का जो माइंडसेट है वो फास्ट ढूंढता है, क्वालिटी ढूंढता है, चिप ढूंढता है। देन नेक्स्ट, देयर आर सम कस्टमर who are not finding cheap products, they want to go with luxury products. So you must have to understand what is the mindset of the customer, उसको क्या चाहिए ये ढूंढना। एज अ कस्टमर सर्विस, एज अ कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, आपका सबसे पहला एक काम है। अब कोई बंदा आपके वहां पे ऐसा सोचिए, ऑडी मार्केट ले आए और आप सर आइए हमारे यहाँ पे एक स्कीम है, आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, तो जस्ट फील, उसको क्या फीलिंग आएगा, वो क्या फील लेके जाएगा आपके वहां से। नेक्स्ट, तो जो कस्टमर आपके वहां पे लग्जरी ढूंढने के लिए आया है वो चीप नहीं ढूंढेगा, वो लग्जरी ही उसको आपको दिलाना पड़ेगा। आप उसको थोड़ा महंगा दोगे, वो थोड़ा महंगा लेने के लिए रेडी है, तो आपको उसका माइंडसेट जो है उसको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, यस, लग्जरी। नेक्स्ट, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको ना महंगे से मतलब है
ना सस्ते से मतलब है, ना फास्ट से मतलब है, उनको किसी भी चीज से मतलब नहीं है। उनको मतलब है यूजर फ्रेंडली, माने मैं अगर यूज करने जा रहा हूं तो वो जो प्रोडक्ट है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। आई कैन यू गिव वन एग्जांपल। मैंने मल्टीपल बैंक्स की जो एप्लीकेशन है उसको मैंने यूज किया हुआ है, बट आई एम यूजर फ्रेंडली विथ कोटक। तो कोटक की जो है मेरे को एकदम इजी लगती है, उसमें फटाफट से काम होता है, इमीडिएट काम होता है। तो हर एक व्यक्ति का माइंडसेट अलग अलग है। द कस्टमर जो आपके पास आता है उसका माइंडसेट कौन सा है, सबसे पहले वो जानना आपका काम है। नेक्स्ट। नाउ द मेन थिंग इज, किसी भी कस्टमर को ये सारी चीजें चाहिए, फास्ट चाहिए, क्वालिटी चाहिए, चीप चाहिए, लग्जरी चाहिए, लेकिन एक चीज जो आपको समझनी है, कस्टमर सर्विस के अंदर 24/7 एज अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव, एज द कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, यू मस्ट बी आंसरेबल। आपको उसको आंसर देना पड़ेगा। हर कस्टमर का एक नीड होता है कि मुझे अटेंशन चाहिए। अगर आप उसको अटेंशन दे देते हो, उसको ये फील करवा देते हो, जैसे लिखा था किंग ऑफ द मार्केट, तो अगर उसको ये फील करवाते हो कि यू आर द किंग, तो हमेशा वो सेटिस्फाइड रहेगा। ये मेरा मानना है। नाउ नेक्स्ट। ये सारी बातें आती कस्टमर कौन सी कैटेगरी में है उसको समझने के लिए। ऑल्दो अगेन मैं फिर से कहूंगा, वैसी ही चीज है कि स्विमिंग सिखाई जा सकती है, आपको खुद को उसका अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो मेरे अनुभव के अधीन मैंने शॉर्ट में रेडी किया है, तो वो आप समझने का प्रयास करना। आप सब लोग कॉल करते हो, कॉल करने के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर यूजिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, only these words you are using. So there is one word in the market right now that is, next please, JSN. किसी को ये पता है what is the meaning of JSN? Can anybody write or tell me what is the meaning of JSN? Hello? Hello? Okay, can anybody tell that? Right, Yes. they are replying in chat. I think majority of them are not aware. Jai Shri Krishna. JSK, that is JSK. Okay. JSN, that means अगर आपका कोई कस्टमर आ रहा है आपके वहां पे, उसने स्वामी नारायण का तिलक किया हुआ है, तो आप उसको JSN कहिए। उसको बोलिए सर JSN। व्हेन यू से JSN, देन देयर आर सो मेनी पीपल, उनको खुद को भी नहीं पता है कि जय स्वामी नारायण है इसका मतलब। जय श्री कृष्ण मीन्स JSK एंड JSN मीन्स जय स्वामी नारायण। व्हेन कस्टमर इज कमिंग, उसके सर पे तिलक है, जब आप उसको गुड मॉर्निंग के बजाय जय स्वामी नारायण बोलते हो, शॉर्ट फॉर्म में JSN बोलते हो, तुरंत आप उसके हार्ट के नजदीक चले जाते हो। माने एक कनेक्शन है, माइंड का एक मैपिंग है, उसको ये लगता है कि मेरे वाला बंदा है, मुझे सही तरीके से ये गाइड करेगा, ये स्पिरिचुअल चीज है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और उसको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, वो सब बोलने की जगह पे आप जय स्वामी नारायण बोले। लेकिन आप ये तभी बोल सकते हैं जब आप श्योर हो कि वो बिलीव करने वाले हैं जय स्वामी नारायण में। अगर गलती से कोई अदर कास्ट का बंदा आ गया जिसको जय स्वामी नारायण से तकलीफ है, और अगर आपने उसको जय स्वामी नारायण बोल दिया, तो आपका सर्विस शुरू होने से पहले ही खराब हो जाएगा। मैंने आप कितना अच्छा उसको प्रोडक्ट देंगे, उसको उस चीज में कनेक्शन आप नहीं कर पाओगे। माने बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन समझने वाली चीज है। देन आफ्टर आप जो भी मिलता है उसको ये चीज पूछिए, सर आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट अबाउट योर डे। जब आप उसको ये चीज पूछते हैं तब ऐसा मत लगने दीजिए उसको कि आप प्रोफेशनल तरीके से उसको पूछ रहे हैं। उसको वो चीज फील आना चाहिए, जय स्वामीनारायण साहेब કેમ છો, કેવો રહ્યો તમારો દિવસ। પ્રોડક્ટની તો બધી આપણે પછી વાત કરીએ છીએ, તમારો દિવસ કેવો રહ્યો। અગર એ ગુસ્સે નહીં હોય તો એને મજા આવી જશે, એ તમારી જો થોડી વાતો અલગ કરશે, અને જો ગુસ્સે હશે, ઠીક છે, દિવસ સારો રહ્યો, મારી જે વાત છે તમે સાંભળો, યુ જસ્ટ લિસન ટુ મી વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે। બટ એનું જે ગુસ્સે થવાનું જે લેવલ હશે
એ ડાઉન થઈ જશે, અથવા તો એનું જે પરચેસ કરવા માટે એ 10% વિચારણા લઈને આવ્યો હશે તો એ 40% સુધી આટલી વાતથી પહોંચી જશે. નેક્સ્ટ, आज के मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो ये है, एग्जैक्ट नीड या एग्जैक्ट चैलेंज या एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझना. आप सभी ने वो चीज फेस किया होगा व्हेन यू कॉल टू कस्टमर केयर any application anywhere, when you meet any customer relationship officer, 95% people आपकी प्रॉब्लम को समझने में ही 5 मिनट लगा देते हैं. यस और नो, प्लीज राइट इन चैट यस और नो. वाई फॉर यस एंड फॉर नो. सबसे पहले आप अगर कस्टमर रिलेशनशिप में है, कस्टमर के अंदर ये प्रोफेशन में है, तो आपको ये समझना पड़ेगा उसकी नीड क्या है, उसकी चैलेंज क्या है. अब मेरे जैसा कोई बंदा कस्टमर बन के आपके पास आएगा तो सारी चीजों को ढूंढ के आएगा और फिर आपके पास आके आप जैसे बोलना शुरू करोगे तो आपसे ज्यादा जानकारी तो वो लेके आया है, तो वो कस्टमर को आप जब तक नहीं समझोगे आप उसको गाइड नहीं कर पाओगे. अंटिल ही और शी एक्सप्लेन, डोंट इंटरप्ट. जब तक उसकी सही बात आपको समझ में नहीं आ जाती है, नेक्स्ट, सही बात समझ में नहीं आ जाती है तब तक उसको सुनो. हर बंदे का प्रॉब्लम है, मुझे कोई सुने. आप चेक करिए आपके घर में भी आपको लोग नहीं सुनते हैं. यस और नो. माने हमारे घर में भी सुबह से शाम में किसी ने हमको ये नहीं पूछा कि बेटा कैसे हो. तो अगर आपको कोई ये पूछता है, आपको पूरा समझता है, पूरा जानता है और आप उसकी बात को पूरा जान लेते हो तो आप तरीके तक पहुंच जाते हो कि उसका प्रॉब्लम क्या है. और अगर आप प्रॉब्लम तक पहुंच गए, अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पता है, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, नेक्स्ट, कि हमको सारे प्रॉब्लम पता हो, सारे प्रॉब्लम हमको पता नहीं हो सकते. तो बहुत सारे कस्टमर सर्विस वाले ये होते हैं, वो तुरंत मना कर देते कि मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो. आइदर टू बिकम स्ट्रेट, यू जस्ट पुट देम ऑन होल्ड. होल्ड पे रखने के बहुत सारे तरीके हैं. अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सर आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए पहले चाय मंगवाता हूँ, मुझे आपके साथ चाय पीनी है. हम उसको चाय इसलिए पिला रहे हैं, हमें वो अच्छा लग रहा है, उसका प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें नहीं है. मेन चीज ये है कि हमें हमारा टाइम बाय करना है. हमें उस प्रॉब्लम के एग्जैक्ट सॉल्यूशन को उसके सामने, उसका माइंडसेट, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका फेस रीडिंग सब कुछ समझ के उसके सामने रखना है. उसके बाद हमें बताना, इसलिए हम चाय पिला रहे हैं. अगर वो बंदा फोन पे है, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप उसको होल्ड पे रख सको, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे. 7 नंबर का पॉइंट है जिसमें मैं उसको बताऊंगा, उसको टेक्निकल मैटर करके आप छोड़ सकते हो, वो हम आगे देखेंगे. प्लीज नेक्स्ट. अब उसको ये बोल सकते हो कि लेट मी चेक एंड विल यू अपडेट द सेम. उसको ये कभी मत बताओ कि मुझे पूरा नहीं पता है, उसको कभी ये नहीं बताओ कि मुझे सारा चीज पता है. सिर्फ उसे उतना बताओ कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, आपका जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है, उस चीज को मैं समझ गया हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन लेके मिलता हूँ. तो उसको इतना मजा आएगा, उसको ये लगेगा कि आपका अटेंशन उसके साइड है. नेक्स्ट, चैलेंजिंग प्रॉब्लम इफ यू नीड मोर टाइम. अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसमें आपको ज्यादा टाइम चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आप कुछ भी करके उसको होल्ड करिए. नेक्स्ट, नेक्स्ट, हर टाइम पे, हर समय पे अलग अलग सिचुएशन आएगा. माने आप ये, मैंने अभी चाय का आपको बताया कि कोई कस्टमर आया तो उसको चाय पिला के शांत कर सकते हैं. इफ यू आर गिविंग कस्टमर सर्विस इन द कॉल सेंटर, इफ यू आर इन कस्टमर रिलेशन ऑन द कॉल सेंटर, तो अगर आप कॉल पे होंगे तो क्या आप उसको ये बोलेंगे, सर आप एक बार वहां चाय पीजिए और मैं यहाँ चाय पीता हूँ और मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन करके बता रहा हूँ. इज दिस राइट वे, यस और नो? नो, प्लीज राइट इन चैट. तो आप सिचुएशन समझिए. माने आप कोई किराना के व्यापारी पे आप बैठे हुए हो, किराना की दुकान में बैठे हुए हो, मॉल में बैठे हुए हो, वहां पे कस्टमर रिलेशन है, कोई बंदा आपको आके बोलता है कि गुड़ है सर, गुड़ में है ना ये जीवात आ गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है. अब उसको ये टाइम ये बोलेंगे यार तू चाय पी ले. मैंने एवरी टाइम, एवरीवेयर देयर इज डिफरेंट सिचुएशन, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड देन गो.
इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन तो आप इतने बुरी तरीके से पिटोगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा और लाइफ में आप मार्केटिंग से खराब हालत आपकी कस्टमर रिलेशनशिप में हो जाएगी। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि ये बात मुझे नहीं पता कि आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि आमने सामने में समझ नहीं आती है। तो प्लीज सपोर्ट मी ऑन चैट, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, यस और नो प्लीज। नेक्स्ट। मैं 16 साल के से था। जयदीप भाई को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड जयदीप भाई, यू जस्ट राइट द ऑल थिंग्स व्हाट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, वी कैन डिस्कस ऑन कॉल ऑल्सो इफ यू वांट टू डू। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कॉल या चैट के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बाकी सारे लोग समझ रहे हैं, थैंक्स अ लॉट हु आर अंडरस्टैंडिंग माय लैंग्वेज। इफ यू आर द कस्टमर, आप अब कस्टमर सर्विस का, कस्टमर रिलेशनशिप का अगर आपको जिंदगी में सीखना है तो सबसे बड़ा बेहतरीन मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूं जिससे मैं सीखा हूं, और वो गुरु मंत्र ये है दोस्त, आप अपने आप को कस्टमर की सीट पे बिठा दो और आप सामने बैठ जाओ। वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप पूछ रहे हो, ऐसा आप फील करो कि वो प्रॉब्लम मेरी है, वो क्वेश्चन मेरा है, मुझे वो सामने वाला बंदा, सामने वाला एग्जीक्यूटिव, सामने वाला कंपनी कौन सा आंसर देगा तो मुझे मजा आएगा। 5 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप सामने बैठ के उसको ट्रीट करते हो तो आपका ईगो बीच में आता है, आपको शर्म बीच में आता है। जब आप उसी के जगह पे बैठ जाते हो तो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। सो इफ यू आर द कस्टमर, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक, ये आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए, उसकी प्रॉब्लम को समझिए, देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट लेवल, फॉर द सॉल्यूशन। प्लीज नेक्स्ट। बेस्ट वे टू होल्ड द कस्टमर, सबसे अच्छा तरीका टाइम बाय करने का। मेरे दोस्त, जिन जिन लोगों के कैमरा ओपन हो सकते हैं, मैं ओपन करवाना चाहूंगा, उनका फेस देखना चाहूंगा। आई वांट टू रीड द फेस। बेस्ट वे टू होल्ड कस्टमर, माने किसी भी कस्टमर को आपको होल्ड करवाना है तो आप क्या करोगे, क्या बोलोगे? तो इफ यू कैन राइट इन आंसर इन चैट बॉक्स देन प्लीज राइट ऑल्सो। किसी को होल्ड करवाने के लिए तरीका क्या हो सकता है? हेलो, किसी को होल्ड करवाना है तो तरीका क्या हो सकता है? बिल्ड रिलेशनशिप, बी लिटिल फ्रेंडली, दैट्स ग्रेट डॉक्टर रिधि। एक्सप्लेन अबाउट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ट्रू। लेकिन अगर आप कॉल पे हो तो आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कैसे बताओगे? उसको होल्ड करवाना है और आप कॉल पे हो। अच्छी अच्छी बातें मुझे बतानी है। सी, ये सेशन मुझे 2 दिन का लेना है, लेकिन मेरे पास टाइम तो 1 आवर है, तो मैं उस चीज को 1 आवर में कैसे बताऊंगा? उसकी रिक्वायरमेंट, अगर आपने उसको क्वेश्चन पूछा ना तो आप फंस गए। उसको कभी भी किसी भी कस्टमर को आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है। अगर आपको उसको क्वेश्चन पूछना है तो साथ में क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन उसको जवाब भी आपको ही दे देना है, उसको सोचने का तरीका नहीं देना है। जैसे आप कहीं पे हो, कोई कस्टमर, आप किसी दुकान में हो, कोई कस्टमर आपके पास कोई प्रोडक्ट को चेंज करवाने के लिए आया है, चेंज करवाने के लिए आया है किसी प्रोडक्ट को, और आप उसको ये बोलोगे कि मैं आपसे रिलेशनशिप बिल्डिंग करना चाहता हूँ, मैं आपकी बात समझना चाहता हूँ, मैं आपको 4 ऑप्शन देना चाहता हूँ, मैं बर्थडे ग्रीटिंग देना चाहता हूँ, ये सारी चीजें बताओगे तो वहां पे काम नहीं करेगी। आपको उसको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट वापस भी ले लेना है और आपको 4 ऑप्शन दे देना है कि चलो ये आप ये प्रोडक्ट देने के लिए आए हो, मैं इसको वापस तो ले लेता हूँ, लेकिन ये 4 प्रोडक्ट है मेरे पास, वो 4 प्रोडक्ट आप ले लीजिए, वो 4 प्रोडक्ट है वो आपको ऑप्शन देना है। जैसे कोई साबुन देने के लिए किराना के दुकान में वापस आया, आपको पैसा वापस नहीं देना है, देन जस्ट यू गो लाइक दैट, सर आई विल बाय, आई कैन बैक योर रिटर्न बैक योर सोप, कैन यू टेल मी व्हाट शुड आई गिव यू रिटर्न विद द प्रोडक्ट लाइक शैम्पू, हेयर ऑयल। तो उसका दिमाग आप जो जो शब्द बोले हैं ना उसके ऊपर जाएगा, या यू कैन से दैट क्रॉस सेलिंग, आप जो जो बोल रहे हैं उसके ऊपर जाएगा, तो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, उसका अपना दिमाग कम चलेगा और आपके ऊपर आएगा। लेकिन अगेन आई वांट टू गिव यू अ ब्रह्मास्त्र, मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देना चाहता हूं इस इंडस्ट्री का। कोई बंदा आपको आके होल्ड करवाता, किसी को होल्ड करवाना है, किसी को वेट करवाना है, प्लीज गो टू नेक्स्ट। सॉरी, देयर इज अ टेक्निकल एरर।
मैं आप सभी को एक चीज पूछना चाहूंगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेक्निकल? टेक्निकल का मीनिंग क्या है? That itself, यस, that itself is technical. So nobody understand what is technical error. Sir, system. ट्रू, दैट्स ग्रेट. यस मयंक भाई, दैट इज अ सिस्टम प्रॉब्लम. यस. Is and anyone else want to tell? Inbuilt error, true. Meghna, error. Isha, basic, that's great. So yeah, basic error. But I mean by technical, मुझे क्या समझ में आता है मैं बताता हूँ. टेक्निकल बात, टेक्निकल चीज, दैट मीन्स व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे जो समझ में आता है वो आपको समझ में नहीं आता है, दैट इज टेक्निकल. मुझे जो समझ में હું ગુજરાતીમાં એવું કહીએ તો મને જે ખબર પડે છે એ સામેવાળાને ખબર પડતી નથી, એને કહેવાય ટેકનિકલ એરર. Automobile industry, how can that change car? Okay, we'll talk on that, Khushbu Khan. Yes, Meghna, you just say something. Sorry, I was on the chat. Please. It's a marketing language. Exactly. So marketing language. आप समझ जाओगे और आप टाइम को बाय कर पाओगे. Again, someone is asking. Yeah, Yes, rather ma'am. than marketing, it's a sales language. True. See, whatever the language, whatever the marketing, whatever the relation, that I don't know. Again, I am just going to tell you how to hold a customer. हमारा इरादा क्या है, आप समझिए मेरी बात को. हमारा इरादा क्या है? टाइम को बाय करना है. हम कैसे टाइम को बाय करेंगे? तो टेक्निकल एरर आप बोल दोगे, तब तक आप जो एक्सपर्ट है उसके पास जाके उस बात को जान के आ जाओगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है. और अगर आपको मैं एक बात बताता हूं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का किसी ने लिखा है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हाउ कैन आई नो द कस्टमर इश्यू इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हाउ कैन आई चेंज द कार. सो एवरीवेयर, मैं जो आपको बता रहा हूं, कोई बोल्ट है, 4 नंबर का बोल्ट है, तो उसमें 4 नंबर का पाना लगेगा. खान साहब, जो 4 नंबर का बोल्ट है तो 4 नंबर का पाना लगेगा. मैं अभी आपको किराने का एग्जांपल दिया हूं, तो उसको आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं ले जा सकते हैं. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अलग चीज आएगा. ट्रू. इट इज नॉट पॉसिबल इन एवरी प्रोडक्ट. आई एम जस्ट टेलिंग यू द हाउ टू हैंडल अ कस्टमर. अगेन, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूं. क्वेश्चन ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे कार पूरा चेंज कैसे होगा. सर, कार चेंज नहीं होगा. मेरे जैसा कस्टमर अगर आपके सामने आ गया और इफ यू आर इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपको वो चीज भी चेंज करके देनी पड़ेगी जो आपके अंदर बुक में नहीं लिखा है. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं थोड़ा आउट ऑफ वे जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया, उनको समझाना, सभी को समझाने के लिए जरूरी है. वेन एवर यू बाय अ कार, आपने कभी भी कार को परचेस किया तो उसके अंदर एक बुक आता है. तो कार बोलता है कि हम कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में गारंटी देते हैं. तो कार कभी भी टायर के अंदर गारंटी नहीं देती है. कोई भी कंपनी टायर में गारंटी नहीं देती है, राइट? खान साहब, खान साहब, कार्स कभी, आर यू विथ मी? आई एम एक्सप्लेनिंग. He wrote that, yes. Yes, sir. Continue. या प्लीज. तो कार का जो टायर है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, मैं उस चीज को मानता हूं. लेकिन मैं एज अ कस्टमर, एक कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर पे इतना चिपक गया था, उनको आउट ऑफ वे जाके उनको मेरा टायर चेंज करना पड़ा. और टायर चेंज किया तो हमने विन विन सिचुएशन पे किया. कंपनी का पॉलिसी है, वो लोग कभी चेंज नहीं करते. एज अ कस्टमर मुझे चेंज करवाना है, तो हम दोनों, मैं दिल्ली तक लड़ा था इस चीज के लिए. कस्टमर फोरम में जाने की धमकी भी दिया था. तो उन लोगों ने क्या किया, 3000 का टायर आता है तो 1500 रुपये उन्होंने दिए, 1500 रुपये मैंने लगाए. सो यू कैन नॉट चेंज द कार, सी. बट उसके लिए आप जो कर सकते हो, लड़ सकते हो, अगर राइट कस्टमर सपोर्ट करने वाला होगा. सी, हमारा उद्देश्य सिर्फ कस्टमर को ये ऑब्लाइज करना है, बताना है, बेटा मैं तेरे साथ हूं. बाकी तो कोई कस्टमर केयर वाले के बाप की ताकत नहीं है कि कंपनी के रूल को चेंज करके खुद चेंज करवा ले. बता दो किसी में ताकत है तो मेरे में, मुझे इतना बता दो, किसी भी कस्टमर केयर वाले में ताकत है
कि चेंज करवा दे कंपनी की पॉलिसी। कस्टमर केयर वाले की तो हालत सैंडविच जैसी है, कंपनी एक साइड से बजाती है, दूसरी साइड से बजाते हैं कस्टमर, उसको सिर्फ अपना माइंड कूल करके सिचुएशन को हैंडल करना है। ट्रू? इज इट ओके खान सर? इट्स ओके, देन प्लीज राइट ओके। नेक्स्ट 7. थैंक यू। What is the exactly expectation of the customer? I just want to ask you people, कस्टमर को क्या चाहिए? कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा तो उसको चाहिए क्या? मैं आपकी बात सुन के ही आगे जाऊंगा। इधर यू हैव टू राइट, इधर यू हैव टू स्पीक। गिव प्रॉपर रिप्लाई एंड अटेंशन। एग्जैक्टली मिस्टर मयंक, माय आई एम रियली हैप्पी विथ यू। या मेघना, या satisfaction for their product which they demand. वो सेटिस्फेक्शन सेकंड आता है, सॉल्यूशन प्रॉब्लम बाद में आता है, लेस प्राइस बाद में आता है। सबसे पहले इफ यू आर इन द कस्टमर रिलेशनशिप, तो अगर आप कस्टमर के तौर पे चले जाइए, सामने वाले को सिर्फ अटेंशन चाहिए। आप उसको प्रोडक्ट मत दो, आप उसको डिस्काउंट मत दो, आप प्राइस लेस कुछ भी लेस मत करो, सिर्फ उसको अटेंशन दो। आर यू एग्री? यस और नो? Yes, when sir. you attentive for him or her, उनका माथा आधा तो भूल ही जाता है कि वो क्या लेके आए थे। अगर 2 मिनट आपने किसी कस्टमर वाले के पास बैठ के देख लिया, हंस के देख लिया ना, तो सामने वाला पागल। और उसमें भी अगर आप लड़की हो, लेडीज हो, कस्टमर सपोर्टिव में, तो आपके लिए तो बहुत आधी चीजें सॉल्यूशन हो जाती है। सामने अगर क्रॉस जेंडर आता है ना, आप स्माइल कर दो, आधा तो आपकी स्माइल से ही मर जाएगा। ज्यादातर इसीलिए कस्टमर रिलेशनशिप में लेडीज को रखना ये लोग प्रीफर करते हैं। दैट इज ट्रू। माने जो दुनिया है वो तो मानना ही पड़ेगा भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज एग्जैक्टली कस्टमर एक्सपेक्टेशन? योर अटेंशन ओनली। और आप कभी भी गलती से उसको ये मत बोलो मैं दूसरे कस्टमर्स के साथ बिजी हूं। अगर आपके पास दूसरा कस्टमर है तो व्हाटएवर व्हाट यू वांट टू से, आप उसको कुछ भी बोलो। और कस्टमर आके आप, मैं एक चीज बोलता हूं, इफ यू आर इन कस्टमर रिलेशनशिप एंड आई एम अ बायर, और मैं आपके पास आता हूं, आप दुनिया की सारी, बट देन डोंट माय रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। हाँ डॉक्टर रिधि, आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैं जो आ रहा था वो बात आप राइट नाउ यू जस्ट आस्क दैट क्वेश्चन, बट देन इफ आई डोंट गेट माय रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, माने आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आया जिसको जो कुछ लेना है, एज ए कस्टमर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, राइट? आई एम राइट रिधि? व्हाट यू वांट टू आस्क रिधि? Dr. Riddhi, yes. Yes, sir. Yes, sir. Dr. Riddhi, yes. I just want to ask you, you are in customer support, right? And I am the customer. I am coming to you or I am just asking you, मैडम मुझे चांद पे जाना है, Okay. मुझे Which is चांद not खरीदना visible. है। Mhm. हेलो, Yes, Hello. yes, yes. मैं आपको आके बोलता हूँ कि मैडम मुझे चांद खरीदना है, मुझे चांद पे जाना है। सो एज अ कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, व्हाट आंसर विल यू प्रोवाइड? Sir, I am very much happy that you are targeting such a high level of thing, but then सपने देखना अच्छी बात है. We are in your support. एक्सक्यूज मी मैडम, कस्टमर Yes, sir. आपकी इतनी सारे बात, जो देखो जो चांद मांग रहा है ना, उसको भी पता है कि आप चांद लाके देने वाले नहीं हो। True, कैन यू true. अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? Yes, yes. मैं जो मांग रहा हूँ मुझे भी पता है ना, आप देने वाले तो नहीं हो, आपकी ताकत भी नहीं है देने की, राइट? Right. तो ये मुझे पता है। जब इतनी सारी चीजें आप बोलते हो तो उसका मीनिंग क्या हुआ? I am trying to convince you that this is not the right thing. Go for the other मैं तो option. ऑलरेडी कन्विंस हूँ, मुझे तो पता ही है कि आप नहीं दे सकते हो। ट्राई टू थिंक प्लीज, 2 मिनट इसके ऊपर सोचिए आप। हेलो, हेलो, आई वांट आंसर सर। वी कैन से दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन अवर अदर शोरूम। सो मयंक भाई, अब ये बोलोगे कि मेरे अलग शोरूम में ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, सो कैन यू गो टू दैट, जस्ट स्माइल एंड गो टू द अदर ऑप्शन।
मैं इतना कहूंगा, जो परचेज करने आया है, जो बोल रहा है उसको भी 9, आप अब मैंने जो बोला था ना वो सिचुएशन पे आइए। मैंने 5 नंबर के पॉइंट पे ये बोला था आपको, आप कस्टमर बन जाइए। अब रिद्धि, आप कस्टमर हो और मैं कस्टमर सॉल्यूशन में हूँ, ओके। Yeah. तो आप मेरे को अब पूछो कि मुझे चांद चाहिए। दर्शन सर, मैं यहाँ पे आपके पास आई हूँ, सुना है आपकी शॉप बहुत अच्छी है और आपकी जगह बहुत कुछ मिलता है, बट सर मुझे मेरा एक रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे चांद चाहिए। सो सर, कैन यू प्रोवाइड मी मून? जस्ट स्माइल एंड से इफ इट इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स, अगर इस दुनिया में वो चांद मिल पाएगा तो ये बंदा आपको चांद जरूर देगा। अगर मैं नहीं दे पाया तो दुनिया की कोई ताकत आपको चांद नहीं दे पाएगी। वाओ, ब्रिलियंट। जब आपने उसको ये आंसर दे दिया, अब आपको कोई कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने उसको ये बोल दिया तो उसको पता चल गया कि अगर चांद मिल सकता होगा ना तो ये बंदा मर मिट जाएगा। आपने बैक ऑफ द माइंड ये बोलो, मजा आया मजा आया मजा आया, कैसा बनाया कैसा बनाया कैसा बनाया, लेकिन मुंह पे एकदम गंभीर हो। ठीक है सर, आई विल ट्राई। और जब आप ये करोगे ना दोस्त, वो कस्टमर आपका लाइफ टाइम कस्टमर बन जाएगा। लाइफ टाइम कस्टमर माने वो कभी भी जिंदगी को मैं आपको छोड़ के जाने की सोचेगा नहीं। माने आप ये बिलीव नहीं करोगे, मेरे कितने दोस्त हैं, वो किसी भी चीज को परचेज करने जाते हैं, सबसे पहला मुझे कांटेक्ट करते हैं कि भाई दुनिया में ये चीज जो है वो सस्ता कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि दर्शन जो है वो कहीं से भी सस्ता ला के देगा। मैंने अब दुनिया की कोई भी चीज ला के मेरे को दे दो, उसका प्रोडक्ट का ज्ञान मेरे को दे दो और उसके बाद मैं ढूंढ के आपके पास आऊंगा। लेकिन नॉलेज में 100% आपको ये यकीन होना चाहिए, आप कभी भी अपना जो प्रोडक्ट है, आपके पास जो नॉलेज है वो पूरा होना चाहिए। तो कस्टमर आपका कहीं पे भी यहां से टच से मस नहीं होगा। एक्चुअली आई एम वर्किंग सिंस लास्ट 16 ईयर। माने मैं जब 16 साल का था तब से नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूँ। और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई काम है, प्रोफेशन है, तो वो है मार्केटिंग। राइट? यस और नो? सबसे कठिन काम है मार्केटिंग। अगर आप थोड़ा मार्केटिंग के अंदर घुसोगे, मार्केटिंग में बहुत सारे फेज आते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हार्ड सेल आता है वो सबसे ज्यादा कठिन है। राइट? यस और नो? जयदीप भाई saying no, that's great, I am with you sir, we are same with the same mentality। और अगर मार्केटिंग में इट इज नॉट राइट ना सर टू चीट कस्टमर। यस ईशा, हमने चीट कहाँ किया है? हमने किसको चीट किया? ईशा, कैन यू ओपन प्लीज योर माइक? Yes, ईशा, हाँ, हमने चीट कहाँ किया? हेलो? to give anything answer. To give anything, what I give anything? Can you please explain in हिंदी? हमने टू गिव एनीथिंग माने आप ये बोल रहे हो कि कुछ भी बेच देना। राइट ईशा? Yeah. कुछ भी बेच देना। आप बंद मत करो, आप ओपन रखो अभी अपना माइक। Yes, sir. You wrote that, but it is not right ना सर, so cheat customer। So चीट का ईशा, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी दर्शन सर, इफ यू अलाउ मी। सो दिशा, दवाई आपको दी जाती है, पता है क्यों दी जाती है? दवाई हम क्यों लेते हैं? Cure our. हाँ, अभी छोटे बच्चों को जो हम दवाई देते हैं ना, वो हमेशा एक फ्लेवर्ड फॉर्मेट में दी जाती है। राइट? मतलब उनके लिए सही चीज है उनको दवाई देना। बट अगर छोटे बच्चे को आप ऐसा बोलोगे कि बेटा तू ये दवाई ले ले, तेरे लिए अच्छा है, उसको समझ में आएगा? No, ma'am. नहीं। तो हम क्या करते हैं, और जो दवाई की कंपनीज हैं वो क्या करते हैं, उसको फ्लेवर्ड उसमें मिला के फिर वो दवाई देते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो क्या Yes, ma'am. हमने उनके लिए गलत किया या सही किया? सही क्या? सही किया ना। तो एग्जैक्टली व्हाट सर इज सेइंग कि ऑलरेडी कस्टमर्स दुखी ही हैं, यू नो, पूरी दुनिया के इश्यूज उनपे हैं। आप उतने भी ब्लंट मत हो जाओ, उतने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मत हो जाओ कि वो बेचारा दिल पे
भार लेके या दिल पे वो करके आपके पास से जाए, रादर देन यू आर सेइंग नो टू हिम बट इन अ शुगर कोटेड वे यू आर सेइंग नो टू हिम, राइट? सो यही है एक अच्छे सेल्स और एक अच्छे कस्टमर रिलेशनशिप और एक कस्टमर मैनेजमेंट की जो ट्रिक की हम बात करते हैं वो यही है कि आप अपने शब्दों के साथ कैसे खेल रहे हो. सो देयर इज नथिंग कम्स चीटिंग हियर, हम उनको कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई हाँ हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको चांद हम लेके आएंगे. सर हैज वेरी वेरी नाइसली सेड इन टर्म्स ऑफ दवाई दी, मना किया, बट इस तरीके से मना किया कि वो भी खुश हुआ और हम भी खुश हुए, राइट? आर यू गेटिंग ईशा? समझ में आ रहा है? क्या मैम? ओके, सॉरी टू इंटरप्ट दर्शन सर. या No, that's great. That's great. Thanks a lot for support. Isha, I just want to tell you, you just have to change your mindset first. दुनिया में किसी भी सेल्समैन मार्केटिंग वाला कभी किसी को चीट नहीं करता है. माइंड वेल, ये लोगों के अंदर भ्रांति है. चीट होने के लिए खुद कस्टमर आता है, खुद कस्टमर दिमाग लगाता है, खुद कस्टमर परचेस करता है. सो इधर टू से मार्केटिंग पर्सन चीट द कस्टमर, वो कस्टमर पागल है, वो खुद अज्ञानी है, वो खुद चीट होने के लिए आया था, उस पर खुद ज्ञान नहीं लिया और खुद आके बोल रहा है भाई मेरे को ठगो. कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? यस और नो? Yes, sir. Yes. क्रिकेट पे एक रूल है बेनिफिट ऑफ डाउट, सो ये दोनों लेते हैं. कई बार Yes, ma'am. कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स भी लेते हैं और कई बार कस्टमर्स भी लेते हैं. सो इट्स अप टू यू दैट हु टेक्स द बेनिफिट ऑफ दैट डाउट. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड ऑन. या दर्शन? या तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि सारे लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं. ऐसे मेरे को समझने वाले दुनिया में लोग बहुत कम है, तो डोंट टेक इट पर्सनली. अच्छा, इफ यू आर इन सेल्स, मैं मार्केटिंग में हूँ, मेरे को 16 साल से मार्केटिंग के अंदर हो गया और मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग किया हुआ है और मुझे कहने में कभी शर्म नहीं आती है कि मैं आज भी डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उसमें जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो जिंदगी में कहीं नहीं मिलता. तो मैं आपको, देयर आर सो मेनी पीपल इन द क्राउड जो कोई चीज को सेल करने के लिए कहे. हर व्यक्ति बचपन से मार्केटिंग करता है, हर व्यक्ति बचपन से सेल्स में है. माने अब जब छोटे थे माँ की पेट में, जब आपको बोलना नहीं आता था, जब आपको दूध पीना था, तब आप रोते थे. यस और नो? यस मैन सर, दैट्स ग्रेट. तो वो छोटा बच्चा माँ की पेट से जो जन्म लेता है उसको भी मार्केटिंग करना तो आता ही है. मैं रोऊंगा तो मेरे को ये चीज मिल जाएगी. बट व्हाट इज माय पॉइंट, अगर आप किसी चीज को बेचने के लिए गए हो, सी मयंक सर, कैन यू प्लीज ओपन योर माइक? Yes, sir. मैं आपके पास आता हूँ किसी चीज को बेचने के लिए, मैंने आपको कोई चीज बेचने के लिए बात किया, अगर आपने मेरे को मना किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, Yeah, तो yes. मेरे अंदर क्या फीलिंग आना चाहिए सर? सर, अगर हम किसी को मना करते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि ये कोई प्रोडक्ट जानना ही नहीं चाहता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, डायरेक्टली ना True. बोलते. ट्रू. ज्यादातर लोग तो सबसे पहले आपको सुन नहीं रहे, तो आपको अपना जो अटेंशन है, जो आपका जो स्टाइल ऑफ स्पीच है, उसको बनाना पड़ेगा उसके हिसाब से. अब मैंने बहुत सारे आई गो थ्रू विथ सो मेनी सेल्समैन हु ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. Customer don't know English and they just want to show up that I don't know English, but I want to say so many things in English. अब आप मेरे को बताओ कि सामने वाले को, गधे को, इंग्लिश तो आती नहीं है, आपको इंग्लिश आती है, आपने सबसे पहले उसको बता दिया अपने मन से कि गधा है. देखो, मैंने जैसे गधा बोला, आपके दिमाग में क्या आया? गधा. तो जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हो तो उसके दिमाग में वो चीज आता है, ये तो हाथी है, इसको तो इंग्लिश आता है, ये मेरे को चीट कर देगा. ईशा ने जो बोला ना, आप ही जाके सबसे पहले वो कस्टमर को बता देते हो कि बेटा मैं तो तेरे को चीट करने के लिए आया हूँ. It's not compulsory to speak in English. यस, सामने वाले लैंग्वेज जो है वो सामने वाले को जो समझ में आए वो बोल दो. लैंग्वेज इज लैंग्वेज. तो डोंट टू टेक इट पर्सनली. अगर सामने वाले ने आपकी प्रोडक्ट लेने से इनकार किया तो वो बंदा आपको मना नहीं कर रहा है दोस्त, वो प्रोडक्ट को मना कर रहा है, उसने आपको मना किया ही नहीं है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वो बंदा प्रोडक्ट को मना कर रहा है, तो आपको पर्सनली लेने का जरूरत नहीं है. मैंने बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स देखे, कस्टमर रिलेशन और मार्केटिंग वाले देखे हुए हैं, उससे किसी को कोई प्रोडक्ट दिया हो और सामने वाले ने मना कर दिया हो. इन क्रिकेट ऑल्सो
commentator give commentary in 2 languages. Yeah, that's great. True. अब हम आगे आ चुके हैं. मैं ये बात कर रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली. तो आप जो चीज को बेच रहे हो, अगर सामने वाले ने आपसे, कस्टमर ने चीज को परचेज नहीं किया तो आपका दुश्मन नहीं है. कस्टमर हमेशा सेकंड टाइम आएगा, वो आके आपसे ही परचेज करेगा. तो आप उसको पर्सनली मत लीजिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से. द पर्सन आस्क you that I don't want to purchase that product. He doesn't mean to say that I am not going to purchase with you, Mr. or Mrs. so and so. Try to understand what I want to say. True. That's मैंने बोला ना कि 4 नंबर का बोल्ट है तो उसके ऊपर 4 नंबर का पाना लगेगा. डॉक्टर रिद्धि, 4 नंबर का बोल्ट है तो 4 नंबर का पाना लगेगा. अब 4 नंबर के बोल्ट पे अब 10 नंबर का पाना लगाओगे तो गोल गोल घूमेगा. मैंने कोई मर्सिडीज लेने आया है. Yes, Yeah. exactly. I was just going to put that example, that Mercedes and BMW, Rolls-Royce, even Rolls-Royce. So वहाँ पे whenever we go, मतलब as a customer when we go, so the salespeople are very up to date. Okay, they wear uniform, good uniform. They are well shaven. They have good personality, and they are bound to speak English. Reason is the customer is like that, because अगर जो 40-50 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, बड़ी वाली, मैं वही चीज आपको कहना चाह रहा हूँ. मैं वही चीज ऑडियंस को समझाना चाह रहा हूँ. सिंपल बात ये समझिए, कौन सा कस्टमर आ रहा है और उसको आप कैसे ट्रीट कर रहे हो वो तो आपको जानना ही पड़ेगा. अगर आप उसको So would like to add on one more thing. Please. You know, अगर हम गांव में जाके ये बात करेंगे कि you know, Angelina Jolie, one of the biggest Hollywood superstar, तो everybody will see with lots of curiosity કે હે કોની વાત કરે છે. બટ એને જ અગર તમે જઈને એમ કહેશો કે નરેશ કનોડિયા કે મહેશ કનોડિયા કે સ્નેહલતા, so they will be more connected to them. So we need to understand what is their emotions, their things. So that is also can be, you know, your yeah. तो अगर हम ये टॉपिक पे बात करना चाहे ना दोस्त, सही में कोई बंदा इस चीज को सीखना चाहे ना, तो इतना समझ लो पूरी जिंदगी कम पड़ सकती है. क्योंकि हर बंदे का दिमाग अलग है, हर बंदे की सोच अलग है, हर बंदे की नीड अलग है. अब अभी हमारी बात हुई मर्सिडीज को लेके, तो मर्सिडीज सिर्फ क्लास पीपल लेने जाते ऐसा नहीं है. आजकल के टाइम में ऐसे लोग भी मर्सिडीज लेने जाते हैं जिनके पास इंग्लिश नहीं है, जिनको बुद्धि नहीं है. अपने मर्सिडीज के वहां पे धोती पहन के भी लोग जाते हुए देखे होंगे. तो राइट नाउ द सिनारियो इज चेंज. राइट नाउ द पीपल आर चेंज, पर्सन्स आर चेंज. तो हर जगह पे सारी चीजें चेंज हो चुकी है. एज अ कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, व्हाट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, देयर आर 2 टाइप ऑफ सर्विसेज. मैंने अपनी पूरे कैरियर के अंदर 2 चीज को आइडेंटिफाई किया है. यस, दैट्स ह्यूमन टच. ट्रू मैम, मैंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया हुआ है. मैंने बोला ना 5 नंबर का पॉइंट हमेशा याद रखना. आप कस्टमर बन जाना और आपके सामने वाला जो बंदा है वो बंदा कस्टमर एग्जीक्यूटिव है, और वो आप अपनी प्रॉब्लम, वो जो प्रॉब्लम बताया उसको अपनी प्रॉब्लम जब समझोगे और सामने वाला जो आपको आंसर दे रहा है, 2 चीजें आनी चाहिए उसके अंदर. वो है नेक्स्ट एक्टिविटी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. I can't see the slide, so can you see all what is written in it? Hello. Is it visible? Yes. Slide is visible. No, not visible. Not visible. That Yes, I am ma'am, telling it is visible. It's visible. Yes, you. No, ma'am. not visible to me. To me, even it is not visible. Okay. Most of the people cannot see that, but I just want to tell you one thing. अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप में है तो कौन कौन से वर्ड होते हैं जो कस्टमर अगर लेके जाएगा तो हमेशा आपकी तारीफ करेगा, आप हमेशा उसके दिमाग में रहोगे. प्लीज राइट दैट वर्ड इन द चैट बॉक्स. कस्टमर क्या लेके जाना चाहिए? आपसे वो प्रोडक्ट नहीं परचेस करता, आपसे कोई बात नहीं करता, लेकिन एज अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव वो एक पर्सन आपको क्या लेके जाना चाहिए आपके बारे में,
एक वर्ड में अगर हम देखें तो क्या लेके जाना चाहिए? रिस्पॉन्सिव। वो बस इतना लेके जाना चाहिए, बंदा मस्त था। क्या लेके जाना चाहिए? बंदा मस्त था। अगर वो इतना चीज अपने दिमाग में लेके जाता है तो पूरी जिंदगी में वो आपका कस्टमर कभी ना कभी बनेगा। कोई भी प्रोडक्ट जो है, यस दैट वन, वाव और आहा, वाव और आहा, आपकी जो प्रोडक्ट है, आप दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट को कैटेगरी में बांटोगे तो देयर आर टू कैटेगरीज ओनली, वन इज वाव, अनदर इज आहा। वन प्रोडक्ट होगा वाव कैटेगरी वाला और दूसरा होगा आहा। तो आपका जो कस्टमर आ रहा है वो वाव कैटेगरी वाला है कि आहा कैटेगरी वाला है, वो आपको पहले आइडेंटिफाई ना करना पड़ेगा। और वो दो में से जब आप उसको देते हो वाव और आहा, तो लाइफ टाइम वो आपको याद रखेगा इस बंदे के साथ बहुत मजा आया, और कभी ना कभी तो वो आपका कस्टमर बनेगा। वैसे टाइम खत्म हो चुका है, आई ऑलवेज गो विथ टाइम। तो समय जो है वो समय का काम करता है। मैं कल इस पीपीटी को मैं बनाने बैठा था, मैं लिख रहा हूँ और पता नहीं उसको कब कंप्लीट कर पाऊंगा। यस मैम। मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ, इसके ऊपर जो मेरा अनुभव अभी तक का रहा है। अगेन मैंने जो बातें बताई है ये बहुत कम बातें हैं। शॉर्ट नहीं, हम आज हम कंक्लूड करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम दो ऑप्शन में आप लोगों को दे रहा हूं। यू कैन मीट मी पर्सनली एनी टाइम ऑन फेसबुक 24 और इंटू 7 आई एम पॉसिबल, और सेकंड सेशन हम रख सकते हैं, यू कैन रिक्वेस्ट टू प्रेसिडेंट एंड टीम। अगर वो लोग चाहे तो हम वापस एक सेशन रखेंगे। और ये जो सेशन आज मैंने लिया है वो वन वे था, मैं बोला हूं आप सुने हैं, मैं जानता हूं आपके दिमाग में देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ये एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। तो आमने सामने जब बात करेंगे तब इसी का कुछ सॉल्यूशन आएगा। और सारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको एक रेकमेंड करूंगा, आत्मनिर्भर भारत उसकी बात कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसके अंदर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो भी आपको भेजूंगा। स्टूडेंट्स को काम करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आने वाले दिन बहुत ही कठिन है, हमको बनना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। और वो जब आप शुरू करोगे, देखिए दुनिया में अगर आपको करना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, नहीं करना है तो फिर उसका कोई रास्ता नहीं है। आप आज से स्टार्ट करोगे माय डियर फ्रेंड, 5 साल लगेंगे आपको परफेक्ट बनने में। अगर आप आज फर्स्ट ईयर में हो कॉलेज के अंदर, अगर आप आज से मार्केट में जाना शुरू करोगे, जरूरी नहीं है कि आप कस्टमर केयर में जाना है तो मार्केट में जाना ही पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी ए बॉस, अगर आपको बॉस बनना है ना दोस्त, तो भी आपको मार्केट तो समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके नीचे के लेयर में जो काम कर रहे हैं ना उसको कैसे हैंडल करना है। नहीं तो कोई भी आएगा आपको कुछ भी समझा के चला जाएगा। जब आपने ग्राउंड वर्क नहीं किया है ना तब आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वही होते हैं जिसने ग्राउंड में काम किया है, जो घिसे है, तबीयत से उनकी लोगों ने बजाई है, लोग उनको बहुत तकलीफ दिए हैं लेकिन खेले हैं तबीयत से। और तो सब करने के लिए एक ही जिगर चाहिए, जिगर। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर कुदरत आपको मौका देना चाहे, राइट द वर्ड इन चैट, अगर कुदरत आपको मौका देना चाहे तो आप खिलाड़ी बनना चाहोगे या दर्शक? राइट द वर्ड व्हाट यू वांट टू बी इन द चैट बॉक्स, खिलाड़ी या दर्शक? खिलाड़ी, 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 खिलाड़ी। एवरीवन वांट टू बी खिलाड़ी। जो नहीं लिख रहा है वो भी सोच रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी को मेरे दोस्त जीतने का नहीं, हारने का भी पैसा मिलता है, जिसके पीछे पूरी दुनिया दौड़ रही है। और दर्शक को माथा ठोकने का भी बिल भरना पड़ता है। अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं, जब क्रिकेट में लोग हार जाते हैं, खिलाड़ी हार जाता है, इंडियन टीम हार जाती है, दोस्त हारने का भी वो पैसा लेके जाते हैं। और आप जो है वो दुखी होते हो, बिजली का बिल भरते हो, टाइम खराब करते हो, टीवी देखते हो, हार गए जीत गए उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपकी जिंदगी से कोई उसको मतलब नहीं है। आप ताली बजाओगे, दुखी होगे। तो आपको जिंदगी में खिलाड़ी बनना है तो आपको अपना टाइम मैनेज करना है और अपने इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए
आत्मनिर्भर बनिए। कभी मौका मिला तो फिर से आपके सामने आऊंगा, मिलेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही है मेरी, आप सब फेसबुक पे जाइएगा और मेरा एक पेज है जेसी दर्शन मेहता, अकाउंट अलग है और पेज अलग है। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, जेसी दर्शन मेहता करके मेरा एक पेज है, वहां जाके एक लाइक कर दीजिएगा तो मुझे भी मजा आएगा कि चलो, क्योंकि दुनिया में किसी को भी लगता है कि यार मैंने कुछ दिया है तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। मैं तो पूरा स्वार्थी बंदा हूँ, मैं तो एक शब्द भी बिना तोले मोले नहीं बोलता हूँ। मेरे एक एक शब्द का मीनिंग होता है, बोलता भी मैं तोल के हूँ। तो मैं मांग रहा हूँ आपसे, प्लीज आपका एक लाइक मेरे फेसबुक पे छोड़ देना, और मेरा एक पेज है जिसका लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आपका जो कुछ भी एक्सपीरियंस है, मैं ओपनली डेयर करके बोल रहा हूँ, अगर मेरा सेशन आपको खराब लिखा है, आइए फेसबुक पे और डालिए जो लगा है वो। आई एम रेडी फॉर दैट, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कस्टमर सर्विस, कस्टमर रिलेशनशिप में एक ही चीज होता है, जब तक आप 100% नहीं होगे तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। 3 और 3 हो चुकी है, मैंने 2-3 को मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, 3 को मैं इसको हैंड ओवर कर रहा हूँ। ऑलवेज आई टेल स्मॉल कविता इन लास्ट ending of my every session, and that I just want to tell to you, and that is, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। आप किसी भी फील्ड में हो, असफलता आएगी, उसको स्वीकारो। किसी ने मना किया, एक्सेप्टेबल, किसी ने गाली दी, मैं बोल रहा हूँ आप कस्टमर एग्जीक्यूटिव हो, कोई आके आपको गाली देता है, अरे क्यों पर्सनली लेते हो, उसने तो दी है, आपने ली है क्या? आपको तकलीफ कब होगी? जब आप उसको लोगे। उसने तो गाली दी, अरे भाई मैंने तो ली ही नहीं, क्या तकलीफ, क्या मेरे को समझाओ। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है ढूंढो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, मेहनत और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रेसिडेंट। Thank you so much, Darshan sir, for such an energetic session, and it was always pleasure to listen you. And आजकल के यूथ को शायद यही चाहिए, राइट? उनको हमें रियलिटी बतानी है। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन तो बहुत कुछ हुआ, बट जब तक रियल ग्राउंड पे काम किए हुए लोग उनसे ऐसे कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक शायद उनको रियलिटी नहीं समझ में आएगी। मैंने एक सेशन लिया था, इनके साथ भी कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने ये बोला था कि हर बार हम हर एक चीज यूथ के लिए तैयार नहीं रख सकते हैं, यू नो, हम मतलब फ्यूचर बिल्ड करें और यूथ उसको यूज करे, वो नहीं हो सकता है, बट हमें यूथ को तैयार करना है फ्यूचर के लिए। तो ये एक हमारा हैंडल एफर्ट था एज अ जेसीआई अहमदाबाद वाइब्रेंट कि हम ये स्किल प्रोग्राम करें। या Sorry to interrupt, if you don't mind, I just want to take more 3 minutes with this youth, क्योंकि यूथ के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन विथ परमिशन विथ यू ऑल मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं हमेशा यूथ से ये बात करता हूँ और ये करना चाहता हूँ। आर यू रेडी फॉर 5 minutes more with me? Yes, sir. Yes, 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 they are. थैंक यू। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताता हूँ, हमारा इंडिया का एजुकेशन जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग है। मैं उस विषय पे बात नहीं करूंगा, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, आप 24/7 कितना भी पढ़ो, आज के जो यूथ है ना, मैंने उस चीज को देखा है, बच्चे सिर्फ नाइट में पढ़ के सुबह में पेपर निकालते हैं। पूरा साल 364 डेज जो है वो क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। यस और नो? सारे लोग यस लिख रहे हैं, सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। तो Yes, बाकी sir. के 300 दिन आप कर क्या रहे हो माय यूथ? हम क्या इसलिए बनाए कि फेसबुक पे पोस्टिंग करें, दूसरों के लाइक करें? हम इसलिए बनाए कि व्हाट्सएप पे फालतू चीजें बनाए? उन लोगों ने हमको खराब चीजें दे दी है, उसका राइट मीनिंग तो आप कभी समझे ही नहीं। मैं आपको एक ही चीज मैं यही बताता हूँ, वो कोई भी इंसान इस दुनिया में अभागा नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो जागा नहीं है, और मुझे जगाना है आप लोगों को। आर यू रेडी टू अवेक? Yes, sir. काजल त्रिपाठी लिख रहे हैं, मैं तो फेसबुक पे हो ही नहीं, तो आप तो दुनिया के साथ नहीं चल रहे हो। तो ऐसा नहीं कि फेसबुक में नहीं हूं, आंधी आ रही है, मैंने आंख बंद कर ली तो बात खत्म हो गई। फेसबुक पे तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको अगर पता नहीं हो, मेरा खुद का कंसल्टेंसी कंपनी है, किसी का भी मेरे पास जॉब प्रोफाइल आता है ना दोस्त, तो सबसे पहले मैं उसके फेसबुक पे जाता हूँ और उसको रीड करता हूँ
कि ये फेसबुक पे क्या बंदा है, ये क्या क्या डालता है, इसका माइंडसेट क्या है, ये जॉब में ये फिट होगा कि नहीं, तो आपको वो तो करना ही पड़ेगा। हम जो टाइम पास करते हैं उसमें से निकलना है। तो किसी ने पूछा तो करे क्या? जी मैं वहीं आ रहा हूँ। आपके पास दिन के घंटे कितने हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में लिखे, हाउ मेनी आवर्स यू हैव? 24। ट्रू। 24 ट्रू। आई जस्ट वांट टू नो दैट ऐसे कितने लोग हैं 53 में जिनको पूरे दिन में टाइम की कमी रहती है? यस लिखना। वाई? मेरे पास टाइम नहीं है, माने मुझे कुछ करना है जिंदगी में लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। 1 2। मैं नहीं बढ़ूंगा आगे, मैं टू वे कम्युनिकेशन वाला हूं। अगर आप कंफ्यूजन में है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मयंक से नो, दैट्स ग्रेट। मोस्ट ऑफ द पीपल से यस, माने 4 5। नो 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 नो, ग्रेट। जो लोग नो लिख रहे हैं मैं उनको ये पूछ रहा हूँ कि 24 आवर्स जो है, जो लोग यस लिख रहे हैं उनको मैं पूछ रहा हूँ वो 24 आवर्स में प्रोडक्टिव आवर्स आपके कितने होते हैं लाइफ के? राइट द आवर्स। नहीं पता। 24 आवर्स में 8 घंटे हम लोग काम करते हैं। 24 आवर्स में हम लोग 8 घंटे काम करते हैं। वो 8 घंटे को आप कभी भी नहीं निकाल सकते। इफ यू आर स्टूडेंट तो 8 घंटे जो है वो आप कुछ ना कुछ पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, स्कूल जाओगे, वॉट एवर इट इज। 6 घंटे आप सो जाते हो, कितने हो गए? 6 और 8। 6 और 8 कितने हो गए? हेलो, 14। राइट। अगर आप वर्कोहॉलिक हो, आप बहुत ही ज्यादा काम करते हो, तो 8 के बदले आप 10 घंटे काम करोगे, 2 घंटे आप ज्यादा काम करोगे। अगर आप अघोरी हो, सोते हो, तो 6 घंटे की जगह आप 2 घंटे वहां पे डाल दोगे, तो हो गए 8 और 8 16। राइट, 16 घंटे हो गए। बाकी कितने बचे अभी? 24 माइनस 16। 24 माइनस 16 कितने बचे? 8। अब बाकी के 2 घंटे पूजा पाठ, अर्चना, खाना पीना, कितने हो गए? 18। 18 हो गए। आर यू विथ मी? इफ विथ मी देन राइट यस। ओके, हो गए कितने? 18। अब आज सुबह में जब आप उठे थे तब आपको पता था कि दर्शन नाम का एक प्राणी आपके जिंदगी में आएगा और 1 घंटा की जिंदगी का खा जाएगा। हेलो, माने ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में आते हैं और 2 घंटे खा जाएंगे। माने अभी ये 52 में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि भाई ये भाई बोलना बंद करे और हम खत्म करके जाए, लेकिन ये भाई बंद ही नहीं हो रहा, हम क्या करें? तो ऐसे 2 लोग आएंगे, पूरे 2 घंटे लोग आएंगे आपकी जिंदगी में और आपका टाइम खा के जाएंगे। उस पर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, उस पर आपका कोई होल्ड है ही नहीं। तो 2 घंटे वो चले गए। अब बचे कितने? 4। सफल आदमी और असफल आदमी के बीच के जो अंतर है वो 4 घंटे का है दोस्त। ये 4 घंटे में ही आप अपनी जिंदगी को सफल बना पाओगे या असफल बना पाओगे। तो 4 घंटे में आप करते क्या हो? नॉर्मल पीपल गप्पे, दोस्तों के साथ बातें, व्हाट्सएप, फेसबुक। मैंने तो बहुत सारे लोग देखे हैं जो व्हाट्सएप और फेसबुक में ही 4-4 घंटे निकालते हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। या ट्रैवलिंग करते हैं। तो ये जो 4 घंटे है उसमें से 2 घंटे को आप मैनेज करो, सिर्फ 2 घंटे को। 2 जो घंटे आप काम कर रहे हो वो करो, और 2 घंटे में जो है आप कुछ नया सीखो 1 घंटा, और 1 घंटा जो है 2 प्रोडक्टिव लोगों के साथ बात करो, जिससे आपका कस्टमर सर्विस डेवलप होगा, जिससे आपका कस्टमर रिलेशन डेवलप होगा, मार्केटिंग एबिलिटी डेवलप होगा। और ये 2 घंटे आप लगातार जब 365 डेज डालोगे ना, माइंड ब्लोइंग। आप दुनिया में कोई चांद बेच खरीदने आएगा ना, डैम श्योर आप चीट करके चांद बेचोगे, उतनी गारंटी है मेरी, आपके अंदर उतना नॉलेज भरा होगा। तो आप 3 साल जो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, टाइम बर्बाद मत करो, रेडी हो जाओ, और जहां पे भी जरूरत है आई एम विथ यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आ जाओ, देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर यूथ मजबूत है, एक बंदा मजबूत होगा, वो 10 लोगों को मजबूत करेगा। कोरोना जितनी तेजी से फैलता है उतना फैलना पड़ेगा आपको, तभी देश मजबूत होगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कृति बहन। Thank you so much, sir, for a wonderful session, and audience को भी thank you being so interactive. Riddhi madam, thanks for moderating and all the introductory part. कल हम मिलेंगे. I am going to take a session on entrepreneurship, right? So ready हो जाएगा tomorrow sharp at 3 p.m.
come with a pen, page, and a few sketch pens. So tomorrow I'm going to take session on entrepreneurship. Thank you so much for wonderful participation. Thank you so much, Darshan sir, for all the energy which you have showed. Thank you so much for your time. Amazing with all the audience. See you all tomorrow sharp at 2 o'clock, 2 to 3. Okay, bye-bye. Thank you. Share your feedbacks in group if anybody has any special things to say. Thanks once again. Thank you. Thank you. So there is a connection issue. The recording ક્યાંથી ચાલુ છે? Stop.